Good morning, students. Today we have to solve exercise 6.1 on the basis of the properties of the solid shapes. In previous video we have to discuss about what are the faces, edges and the vertices of the solid shapes. So here you have to write how many faces, vertices and edges are there in a solid. Okay. Look at that in exercise 6.1. Your first question is that matching. Okay. Some solid shapes are given, names are given, and objects are given. You have to match them. This type of figures or solid shape is called sphere. A soft drink can means a can just like a cylinder, means it is just like a cylinder, then you have to match this. A cricket ball, it is just like a sphere, means the sphere is given here. A dice is a form of a cube. Cuboid means in which a length and breadth, it is made from on joining the rectangles. जो rectangle के join होने से बनता है means duster. Duster is a form of cuboid. Okay, only here you have to match them. In question number 2, some questions are given and you have to find the answer according to the question. What is the first is that what is the name of the square prism? The square prism is known as square. Square prism is also known as square. जो स्क्वायर प्रिज्म है उसे हम स्क्वायर भी कह सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑल शेप्स जो भी उसमें इंक्लूडेड होंगे वो सभी स्क्वायर्स होंगे, तो वो स्क्वायर, ठीक है. इट इज ऑल्सो नोन एज क्यूब. स्क्वायर प्रिज्म इज जस्ट लाइक ए क्यूब. अ फुटबॉल इज एन एग्जांपल of which solid figure? Football means just like a circle type structure, means a ball. Both ball and football, both are the example of the shape, sphere. Okay. Which solid shape has no vertices? कौन सी solid shape है जिसमें कोई vertices नहीं होती? या तो आप previous video में जितनी भी properties लिखवाई थी, in front of that there we have to write the number of vertices, faces and edges. You have to identify only a sphere is given in which there is no any corner. It means there is no also any vertices. Okay. So which solid shapes has no vertices? Sphere. Write the number of the faces, edges and the vertices of tetrahedron. Tetrahedron means it is a type of a triangle in which it is a type of a pyramid in which it can be formed by joining the triangles. If you have to join 4 triangles like that, suppose this is a form of a triangle, and if you have to join there 1, 2, 3, 4 triangles are there. If you have to fold one by one, there are first fold इधर से लगाएंगे, second fold इधर से लगाएंगे, third fold आप इधर से लगाएंगे, then it will be converted into the form of a pyramid, and its base is a triangular shape. It means its name is triangular pyramid. Means tetrahedron is also known as triangular pyramid. Here you have to identify the number of faces, edges and the vertices. Check first how many faces are there. First you have to check, if you have to find the number of faces, then you have to check how many triangles are used. कितने triangles यहाँ use हुए हैं? 1, 2, 3, 4. Means there are 4 faces. Okay. And then you have to find the number of edges. Easily you have to find the number of edges. Means 1, 2, 3 जो उसका बेस होगा उसमें एक ट्रायंगल की शेप होगी, मीन्स वो फ्लैट एक फिगर होगा, मीन्स ओनली 3 vertices are there in the base and 3 vertices are there, 1 and 2 and 1, 3. 3 vertices are 3 edges are there, means 3 edges are there and 3 edges are there in the base. Total number of edges 6. Okay, number of edges 6 and faces 4. And wherever you have to find the vertices means those corner where the edges are meets. वो corner जहाँ पे edges meet कर रहे हैं, तो एक top होगा जहाँ पे vertex होगा, एक इस top पे ये जो नीचे के base के
3 कॉर्नर्स हैं और एक ऊपर का टॉप का, ठीक है। तो जो आप फिगर यूज़ कर रहे हैं, जो आप शेप यूज़ कर रहे हैं, उसके जितने वर्टेक्सेस हैं +1, क्योंकि टॉप पे सिर्फ एक वर्टेक्स होगा, तो टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्सेस 3 and 1 4 vertices. There are 4 vertices. Okay. Question number 2 is completed. And you have to write the answer according to the question. जो क्वेश्चन पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अब टेबल इज गिवन। ये सारा काम प्रीवियस वीडियो में करवा दिया गया है, आपको सब कुछ लिखवाया है कि क्यूबॉइड में कितने फेसेस हैं, कितनी एजेस हैं। अगेन यू हैव टू check which shape, solid shape is given here and write their vertices, faces and the number of edges. Okay, the first figure is given cuboid and we know that the room is a form of a cuboid. Cuboid means जो टॉप होगा रूम का और जो फ्लोर होगा, दो फेसेस तो वो हो गए। जो साइड की जो टू वॉल्स हैं, अपोजिट 2 वॉल्स, वो 2 वॉल्स और होगी, 2 + 2 4। एंड जो साइड्स की ऐसी वाली वॉल्स हैं कितनी होगी, वो भी 2 हैं। तो देयर आर 6 फेसेस, 6 faces, and check the number of edges, 4 vertical edges and 1 2 3 4 जो टॉप होगा उसमें 4 edges means the lines where the surfaces meets, वो लाइन यहाँ पे सरफेस मीट करेंगे, मतलब 1 2 3 4 वर्टिकल लाइंस आर देयर, 4 टॉप में होंगी और 4 बॉटम में होंगी, ठीक है। तो कितनी होगी, 4 + 4 + 4 means 12 vertices, 12 edges are there. Vertices where the point where the edges meets, वो point जब means corner। अगर आप एक रूम का कॉर्नर देखेंगे मीन्स एक इस टॉप पे है 1 2 3 and 4, ओके 1 2 3 4 एक साइड में कॉर्नर होंगे, तो जब दूसरी साइड पहुंचेंगे तो उधर भी 4 कॉर्नर मीन्स टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस 8। Okay, then check how many vertices, edges and faces are there in a cone. तो cone is just जो जोकर की हैट है या जो आइसक्रीम कोन है, that is the structure of solid shapes of cone. Then check how many faces are there. अगर आप इस कोन को चेक करेंगे मीन्स एक तो कर्व ऐसा वाला सरफेस होगी और एक उसकी फ्लैट जो नीचे से ज्वाइन होगी, जो फ्लैट होगी, मीन्स देयर आर 2 faces. राइट, देयर आर 2 फेसेस। वर्टिसेस तो सिर्फ एक टॉप पे होती है, वहाँ पे एक कॉर्नर है, बीच में सब कुछ सर्कुलर है, मीन्स वहाँ कोई कॉर्नर नहीं है, मीन्स ओनली 1 वर्टिसेस। एजेस कितनी है, वो जो 2 सरफेसेस हैं वो दोनों सरफेसेस कहाँ मिलती हैं, नीचे एक लाइन आती है, उसमें जो कोन में एक लाइन ड्रॉ होती है ऐसे सर्कुलर, मीन्स देयर इज ओनली 1। ऊपर कोई एक लाइन, कोई एज नहीं होगी, कोई एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, मीन्स हियर इज अ कर्व लाइन इज फाइंड इन द बॉटम ऑफ दिस फिगर। ओके, बॉटम में तो एक लाइन होगी, मीन्स देयर इज ओनली 1 एज, 1 वर्टेक्स एंड 2 फेसेस। सिलेंडर मीन्स जस्ट लाइक ए बॉटल। जो बॉटल है दैट इज अ फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। अब फेसेस चेक करने हैं, 1 कर्व, एक ऐसा हो गया, एक बॉटम का हो गया, एक टॉप का हो गया, 2 फ्लैट एंड 1 कर्व, मीन्स देयर आर 3 फेसेस। हाउ मेनी फेसेस आर देयर, 3 फेसेस। अब वो जो कर्व फेस है वो फ्लैट फेस के साथ में एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेगा, एक लाइन यहाँ पे कॉर्नर पे होगी और एक बॉटम में, मीन्स अ टॉप एंड अ बॉटम हैव 1 एजेस, मीन्स 1 + 1 2 एजेस। 2 एजेस का मतलब आप लिख लीजिए 2 कर्व एजेस। वर्टिसेस कोई कॉर्नर नहीं होगा उसमें, कोई ऐसा कॉर्नर, क्योंकि ऊपर का जो टॉप है वो भी सर्कुलर है, बॉटम भी सर्कुलर है, मीन्स देयर इज नो एनी वर्टिसेस। ट्रायंगुलर पिरामिड एंड टेट्राहेड्रॉन बोथ आर सेम। तो टेट्राहेड्रॉन का सारी प्रॉपर्टीज यहाँ दी गई हैं, फेसेस 4 है, फेसेस 4, एजेस 6 एंड द वर्टिसेस 4। पेंटागोनल पिरामिड मीन्स अ स्ट्रक्चर। पेंटागोनल पिरामिड मीन्स सपोज यू हैव टू, मीन्स इट्स बेस इज जस्ट लाइक ए पेंटागोन। अगर आप बेस पे एक पेंटागोन लगा देते हैं, ठीक है, बेस, तो उसकी जितने भी, देखिए अगर आप पिरामिड ड्रॉ कर रहे हैं इसका मतलब है आपकी जो साइड्स की जो सरफेसेस हैं वो सब ट्रायंगुलर शेप में आपको फिक्स करनी होगी, ठीक है।
अगर आप प्रिज्म की बात करते हैं तो इसका मतलब है आपको जो साइड फेसेस हैं वो कैसी रखनी होंगी, रेक्टेंगल शेप में, ठीक है। तो अभी हम बना रहे हैं पिरामिड। तो अगर पिरामिड बनाएंगे जिसका टॉप में एक ही वर्टेक्स होता है, उसका बॉटम में आपका पेंटागन लगा हुआ है, तो साइड में कितने ट्रायंगल्स ज्वाइन करने होंगे, जितनी पेंटागन की साइड्स। पेंटागन मीन्स 5, तो 5 साइड्स पे हर एक साइड पे आपको एक ट्रायंगल लगाना है। एक ट्रायंगल इधर, 2, 3, 4 एंड इधर एक 5 ट्रायंगल आप उसमें ऐड करेंगे, किसमें, उसके साइड वॉल्स पे, और नीचे का जो बेस है वो कैसा है, पेंटागन है। तो आप चेक कर सकते हैं, इट इज़ ए सॉलिड फिगर, तो वो या तो एग्जैक्टली हो तो आप उसे देखिए, वरना आप ऐसे समझिए कि एक पेंटागन जिसमें 5 साइड्स हैं, हर एक साइड पे एक ट्रायंगल यूज किया है, ठीक है। अब आप चेक करिए, क्या चेक करना है, फेसेस। ओके, चेक द नंबर ऑफ फेसेस। एक तो बेस में एक पेंटागन यूज हुआ है, हर एक साइड में एक ट्रायंगल यूज हुआ है, तो कितनी साइड्स हैं उसकी, 5। तो एक बेस और 5 फीट, 6 फेसेस आर देयर। हाउ मेनी फेसेस, 6 फेसेस आर देयर। एजेस, check the number of edges. Edges means 5 lines, क्योंकि 5 साइड्स होती हैं पेंटागन में, तो 5 तो वो लाइन्स होंगी, तो 5 तो नीचे एजेस होगी बॉटम में, ठीक है। फिर अब उसकी साइड वॉल्स पे चेक करते हैं कि जो वर्टिकल लाइंस हैं वो कितनी बनेंगी। देखिए, अगर आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर, एक ट्रायंगल ज्वाइन कर रहे हैं, फिर एक ट्रायंगल ज्वाइन कर रहे हैं, हर एक साइड में आपने एक ट्रायंगल फिक्स किया हुआ है, तो मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, जितना जो आपने बेस में आपने यूज किया हुआ है फ्लैट, उतनी ही फेसेस, उतनी ही एजेस आपके उस साइड वॉल्स पे भी होंगी। जो आपकी साइड वॉल्स बन रही हैं उनमें जो नंबर ऑफ एजेस होंगी ठीक सेम होंगी, ठीक है। नीचे बेस कितना है, 5 एजेस हैं, तो इसका मतलब है उसकी वॉल्स पे भी 5 एजेस होंगी। 5 + 5 10 एजेस। एंड द वर्टिसेस, नीचे आप टॉप, केवल आपको बेस काउंट करना है, हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर इन द बेस। टॉप पे सिर्फ, क्योंकि ये पिरामिड है तो टॉप पे सिर्फ एक वर्टेक्सेस होगी, तो नीचे पेंटागन है, मतलब इसमें 5 कॉर्नर्स हैं, 5 + 1, हाउ मेनी, 6। ओके, ओके, दिस इज योर exercise 6.5. Here only 2 questions are given, and we have to solve. There is no need to solve them, only you have to match them. Question number 2 is the matching, and 1, identify some shapes are given in question number 1. Only you have to identify which type of shapes are given. Okay, the shape nets of the shapes are given in question number 1. That is your exercise 6.2. In question number 1, identify the 3D shapes by the following nets. कुछ नेट्स दिए हैं जिनसे हम सॉलिड फिगर्स को जनरेट करते हैं, तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस चीज, कौन से सॉलिड के नेट्स हैं। ओके, फर्स्ट वी हैव टू चेक दिस वन। 1, 2, 3, 4 रेक्टेंगल शेप्स आर गिवन एंड 2 स्क्वायर शेप्स आर गिवन। इफ यू हैव टू just means that these are the folds of a net, means ये जो net है ये इसके folds हैं। अगर इन folds को आप properly करेंगे तो then it will be converted into the form of a cuboid, means ये जो fold है ये किसके हैं, cuboid के। write their name, it is a form of a cuboid। 1, 2, 3, 4 जो surfaces हैं वो कैसी हैं, rectangle shape में। सपोज रूम इज द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड, रूम जो है वो क्यूबॉइड की फॉर्म में है, मींस उसका जो टॉप है, जो बॉटम है, जो साइड की 2 वॉल्स हैं, दीज आर गिवन इन रेक्टेंगुलर शेप, एंड द साइड 2 वॉल्स, फ्रंट एंड द लास्ट 2 वॉल्स आर गिवन इन स्क्वायर शेप, मींस दिस इज अ फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड। एंड चेक विच टाइप ऑफ नेट इज गिवन। ये जो नेट है, फर्स्ट वी हैव टू चेक द नंबर ऑफ स्क्वायर। 1, 2, 3, 4, 5, 6 square surfaces are given and 2 pentagonals are given. If you have to join 2 pentagonals at the top and the bottom, then 1, 2, 3, 4, 5, 6 means that is a hexagon. That is a hexagon. Okay, so to
hexagonals and 6 square surfaces are given. If you have to join pentagonals at the top at the bottom, then there you must have to require to cover the this ये जो साइड की जो सरफेसेस हैं आप उन्हें कवर करेंगे. कितने से करेंगे? जितनी उसकी नंबर ऑफ साइड्स हैं. हेक्सागोनल हैविंग 6 साइड्स. 6 साइड्स होती हैं, मतलब 6 आपको या तो आप स्क्वायर चूज करिए या तो फिर आप रेक्टेंगल चूज करिए जो साइड वॉल्स हैं उनको कवर अप करने के लिए. मींस जस्ट लाइक दिस फिगर हियर पेंटागोनल इज यूज्ड एट द टॉप एंड बॉटम. इन दोनों में पेंटागोनल यूज किया है. तो इसका मतलब अगर आप ट्रायंगल यूज नहीं कर रहे हैं, इनकी जगह पे आप स्क्वायर या रेक्टेंगल यूज कर रहे हैं, तो और उसके टॉप और बॉटम में दोनों में यूज कर रहे हैं आप एक किसी स्पेशल फिगर को, इट मींस इट इज अ फॉर्म ऑफ पिरामिड. इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ अ पिरामिड, इट इज अ फॉर्म ऑफ अ प्रिज्म. ओके, तो हेक्सागोनल आपने यूज किया है, मींस जो ये शेप है, ये जो नेट है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ हेक्सागोनल प्रिज्म. हेक्सागोनल prism. Okay, now check one flat square or rectangle is given and two sides the circles are given, means clearly it is a form of a cylinder. ये cylinder की form right here. And here two triangle surfaces are given and 3 rectangles are given. If you have to fold these 3 rectangles, means 1, 2 and 3 rectangles like that, then corners means a top and bottom. आप जो top है उसका जो bottom है, इन दोनों में आप triangle shape use कर रहे हैं. इसका मतलब आप जो corners की जो walls हैं उस पर आप rectangle use कर रहे हैं, means again it is a form of a prism. ये prism की form है. और जो भी नेम है डिपेंड करेगा जो आपने यूज किया है उसके टॉप और बॉटम. तो इसका टॉप ट्रायंगुलर है, बॉटम ट्रायंगुलर है, मींस इट इज ए ट्रायंगुलर प्रिज्म. ओके, ट्रायंगुलर प्रिज्म. Then this is your question number 2. 3 columns are given. In first column nets are given, and second column when you have to join these nets, अगर आप इन nets को fold करके join करेंगे तो कौन सा solid figure generate होगा? उन solid figures यहाँ पे दिए हुए हैं and their names is given in front of it. आप उनको सबको आपको match करना है. ठीक है, first you have to check जो solid है उसका net कौन सा है और उसका name कौन सा है. ठीक है, this all 1 2 3 4 5 6 all squares are given. ये सारे के सारे squares हैं. इसका मतलब clearly we can say that is a form of a cube. अब ये cube है, इस surface से match कर रहे हैं, मतलब ये आपको इसको join करना है A और ये जो third है, ये first है और ये जो cube. Okay, then check this one. This is a net. ये एक नेट दिया है, इसके साइड्स में पेंटागन यूज किया गया है, मींस इसका टॉप और बॉटम. लुक एट दैट, इन दिस सॉलिड टॉप एंड बॉटम पेंटागन इज यूज्ड. एंड जो साइड वॉल्स हैं उसको रेक्टेंगल से कवर अप किया गया है, मींस ये जो नेट है वो इस सॉलिड का नेम क्या होगा? बिकॉज जो साइड वॉल्स हैं वो क्लियरली रेक्टेंगल से कवर अप की गई हैं. इसका मतलब है दैट इज अ फॉर्म ऑफ ए पेंटागोनल प्रिज्म. तो आप इस फिगर को जो सेकंड वाला है उसको आप फर्स्ट से मैच करेंगे और जो पेंटागोनल प्रिज्म है दैट इज ओके. देन चेक दिस वन. अगर आप इसे जैसे ही फोल्ड करेंगे, एक वन फोल्ड जो उसका बेस होगा वो सर्कल जो आपको दिया है वो उसके बॉटम में आएगा. मतलब क्लियरली इट इज अ फॉर्म ऑफ ए कोन. ये कोन है, कोन का फिगर यहाँ बना है, मींस आप इसको इस फिगर से ज्वाइन करेंगे और इसका जो नेम है दैट इज गिवन हियर कोन. द लास्ट वन क्लियरली in previous video, in this video in exercise 6.1 also we can discuss about that is a form of a triangular pyramid. इसे triangular pyramid भी कहते हैं, otherwise we call it tetrahedron. Okay, that is an tetrahedron. अब जो लास्ट वाला जो भी रह गया है वो आप इसको ज्वाइन कर देंगे, this one and this one. Okay, so your chapter 6 is also completed in
next video we have to start your next exercise, last exercise integer. Okay, this is your last exercise to मतलब जो हाफ ईयरली सिलेबस है वो आपका चैप्टर 7 तक है. जो लास्ट एक्सरसाइज है वो इंटीजर्स है. इन नेक्स्ट वीडियो वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट. ओके.